Namaskaram. I, Mrunmay Prasad Chittaye, welcome you all to this blessed evening. Pune Samvad and Arka Student Forum present Path to Purpose, Bharatiya View of Life and Today's Aspirations. Ano bhadraha kratavo yantu vishwataha. May good thoughts come to us from all directions. Inspired by this Bharatiya ideal, Pune Samvad is a platform that is fostering a community of passionate minds keen to explore the depths of society, history, culture and civilization. Pune Samvad has received tremendous support from the community with over 200 Punekars eagerly joining us as volunteers. We have had the privilege of hosting remarkable speakers in the past, including late Shri Vivek Debroy, Dr. K.K. Mohammed, Sanjeev Sanyal, Commodore Shrikant Deshmukh, Advocate J. Sai Deepak, and Abhas Maldahyar. We look forward to bringing many more such thought-provoking discussions that would help us understand our civilization and accordingly have an informed worldview. Please do stay connected with us on Instagram, YouTube, and Twitter for regular updates and upcoming events. You may also visit the Pune Samvad website, punesamvad.org, to know more about our ongoing initiatives. Without further ado, I request all of you to join me in welcoming our speakers for today, Shri Abhinav Shankar Bharati Mahaswami ji, Professor Shanti Shri Pandit ji, accompanied by Manoj ji Potsat, and moderator for today's session, Nikhilesh Gushe ji. Chandanam Sheetalam Loke, Chandanaadapi Chandramaha, Chandra Chandana Yor Madhye Sheetala Sadhu Sangatihi. Chandanam Sheetalam Loke. Sandalwood certainly is pleasant in all of the loka, all of the world. Chandanaadapi Chandramaha. Moonlight is even more pleasing than sandalwood. Chandra Chandana Yor Madhye Sheetala Sadhu Sangatihi. But the company of a saintly person, a sadhu, is pleasing than these both. Today, we are indeed blessed to be in the presence of Shri Abhinav Shankar Bharati Mahaswami ji, who will be sharing his wisdom with all of us. Shri Abhinav Shankar Bharati Mahaswami is the 72nd Shankaracharya of Srimad Jagadguru Shankaracharya Kudali Sringeri Mahasamsthan, Dakshinamnaya Shri Sharada Peeth. The Sharada Peeth was established by Adi Shankaracharya 2500 years ago at the confluence of Tunga and Bhadra rivers, which is currently in the Shimoga district of Karnataka. The Mahaswami in his Purvashrama has studied complete Veda, Vedanga and Dharma Shastra, staying at the houses of various Vedic scholars in Karnataka and Andhra Pradesh. He is a gold medalist of Karnataka Sanskrit University. While working as a Vedic teacher in Gurukuls, he studied Vedanta through Marathi literature and also learned from various traditional scholars. In 2016, he gave up his career, home, and family connections to pursue spirituality and nation building. In the process of social work, he joined Bharatiya Shikshan Mandal as a full-time volunteer and worked towards the revival of the Gurukula education system in the country. As part of his work as a full-time volunteer, he visited over 3,000 Gurukulams across India and Nepal, organized large-scale events, established and guided multiple Gurukulams, and authored books on the methodology employed by the traditional Gurukula system. He is guiding multiple universities and research organizations in terms of digitization of manuscripts and IKS-related research, among other subjects. After being selected as the successor to the Kudali Sringeri Mahasamsthan, he took Sannyasa Diksha in May 2023 and is currently heading Sri Samsthan and guiding millions of families who are hereditary disciples of the Mutt. After taking up the responsibility as Shankaracharya,
He has not given up his previous work or his life mission, which is creating awareness about indigenous education and establishing the Gurukula method of education as the mainstream education. He advocates a decentralized system of education that is free from the clutches of bureaucracy and government funding. He speaks and writes in 8 languages on various topics and has reached many readers through his books, columns, and articles. Our humble pranams to you, Swamiji. We are indeed blessed to be in your presence today. I request Shri Manoj Ji Potsat to felicitate and welcome Shri Abhinav Shankar Bharati Mahaswami Ji, the 72nd Shankaracharya of Kudali Sringeri Mahasamsthan, Dakshinamnaya Shri Sharda Peeth, Kudali. Manoj Ji Potsat has felicitated Swamiji. Manoj Ji serves as the coordinator for Pune Samvad and is the co-founder and COO of Seva Infotech Private Limited and Sakar Robotics Private Limited. Beyond his corporate achievements, Manoj Ji is deeply committed to community service. He is a trustee at the Balasaheb Devras Hospital and a co-lead at the Pune Platform for Collaborative Response. He mentors startups at the Atal Incubation Center by providing strategic advice and serves on the advisory board of the Foundation for Indian Historical and Cultural Research. His leadership extends to his role in the Shiva Srushti project, a historical theme park in Pune. Along with Swamiji, we are also honored to have the dynamic, multifaceted, and the first woman and alumnus to be appointed as Vice Chancellor of JNU, Professor Shanti Shri Pandit Ji. I request Nikhilesh Ji to kindly felicitate Shanti Shri Ji. Professor Shanti Shri Pandit. Born in Russia and educated in Chennai at the Presidency College, Shanti Shri Ji was the topper and gold medalist of both BA as well as MA programs. She completed her MPhil and PhD in International Politics from the School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and postdoctorate in Peace and Conflict Studies from the Uppsala University, Sweden. She has a teaching and research career spanning over 3.5 decades. She began as a lecturer at the Goa University in 1988 and joined University of Pune, now known as Savitribai Phule Pune University, in 1991. She served as the General Secretary of the Pune University Teachers Association from 1996 to 2009. She was elected to University of Pune Senate and Management Council and served from 2001 to 2006. Shanti Shri Ji has also served as professor in the Department of Politics and Public Administration, holding the additional charge of Director, International Center. 30 students have completed their PhD under her supervision and 8 students have completed their MPhils. She presides on several universities and board of studies as an expert in areas of teaching and research, focusing on international relations, Asian studies, culture and foreign policy, conflict, violence, and gender. She has been serving as the member of several national academic and research bodies since 2015. Shanti Shri Ji has published 4 books and has edited 2 books. She has also completed several major as well as minor projects. She has published several research papers and has contributed chapters in more than 36 books. Some of her notable works include Parliament and Foreign Policy in India, Restructuring Environmental Governance in Asia, Ethics and Policy, Cultural Diplomacy, Buddhism and India's Look East Policy.
She has contributed several articles in The Hindu, News Today, Gomantak Times, Sakal, and several letters to editors in different national dailies. She has contributed monthly columns and books and has served on notable government bodies like ICCR, ICSSR, and IIALS. Apart from being a renowned academician, Shanti Shri Ji is active in social work and is the founding member of two organizations, namely New Life for India Movement and Youth Forum for Gandhian Studies. She has been conferred with several awards, to name a few: Veer Savarkar Award for Educational Field, Srimati Sushma Swaraj Stree Shakti Award, Universal Peace Federation Ambassador of Peace Award, Deen Dayal Upadhyay Award. Last but not the least, Shanti Shri Ji is a polyglot. She is conversant in Telugu, Tamil, Marathi, Hindi, Sanskrit, and English. She can also understand Kannada, Malayalam, and Konkani. Shanti Shri Ji, we are indeed grateful to have such a multifaceted personality like you to guide us today. Heartfelt welcome to Pune and Pune Samvad. Today's conversation will be moderated by Shri Nikhilesh Ghushe Ji. Nikhilesh Ji is the co-founder of Acquired Lang, a stealth mode research startup working on the overlap between artificial intelligence, Nyaya Darshana, and Sanskrit Vyakran. He has 20 years of experience with entrepreneurship, consulting, and software development in healthcare, media, and telecom. He has completed his BTech from one of the most premium institutions of our country, IIT Bombay. Previously, he has served as CTO at Swasth India, headed products at Care24, co-founded a media startup, as well as a location-based services company. Nikhilesh Ji, welcome to Pune Samvad. We are eager and excited to see how these three very different individuals, treading different paths, come together to converse and converge on the idea of purpose. In today's modern world, we find ourselves dealing with explosion of information. However, knowledge and wisdom seems to elude us. One trend after the another, one reel after the another, we keep running in loops without any anchor, simply drifting in the ocean of information and misinformation. We are confused, uncertain, and often misguided when it comes to finding our purpose. We often wonder, who am I? Why am I here? What is it that I am supposed to do? The answers to these questions cannot be answered by any search engines or, dare I say, AI prompts. Then, how does one go about finding these answers? To explore this, we embark on a journey today in the presence of learned and knowledgeable souls. With the blessings of the divine, let's begin our today's discussion, Path to Purpose, Bharatiya View of Life and Today's Aspirations, a conversation with Shri Shri Abhinav Shankar Bharati Mahaswami Ji and Professor Shanti Shri Pandit, moderated by Shri Nikhilesh Ghushe. I request Nikhilesh Ji to take forward the dialogue. Namaskar everyone. So, I think the best way to sort of start this is to say that the contemporary education system that we have, it teaches us a lot of things, languages, mathematics, economics, physics, chemistry. But there are, as she also pointed out, the most burning questions that we have in life, they are possibly not addressed by what we learn at school and college. Why am I not happy? Why I make plans and not able to implement them? Why don't I get respect in family, office? Why is my wife not happy with me? Eternal question, right? What is it that the Bharatiya view of life has which gives us a feeling that it has those answers which we don't get from, let's say, the contemporary education? Is first question I would. You want me to answer? Yeah. Okay. I will begin with small invocation, and I'll also request all the backbenchers to come forward. It is disrespect to sit back when somebody is speaking. It might be normal in universities and colleges, but not here, I guess. Shankarupena machittam pankikritamabhudyaya
किंकरी यस्य सा माया शंकराचार्यमाश्रये. There are certain things which is better expressed in Hindi, therefore I'll be switching in Hindi and English both. I hope you don't mind. Yeah. You asked about the Bharatiya view of life and suddenly put some direct questions. Before we establish what Bharatiya view of life is, it is very difficult to get to the answers directly. If we go about the philosophy of Bharata, it is very difficult, therefore I will not go to the भारतीय जीवन दृष्टि. कोई भी बात हो तो उसमें 3 विषय होते हैं, एक दृष्टि, दूसरा सिद्धांत, तीसरा अनुष्ठान. दृष्टि, सिद्धांत, अनुष्ठान, दीज आर द 3 स्टेप्स. उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पहाड़ में गया, कहीं गया, सुबह के समय में उसको सूर्योदय के समय अच्छा अनुभव हो गया. ही हैड सम ब्लिसफुल एक्सपीरियंस. ये क्या है? उसका दर्शन है. वो आके बोलता है कि मैं फलाना जगह पे गया था, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ये बहुत अच्छा था. तो अभी ये जो है, ये बात है, इस बात को लेकर चर्चा होगी, मीमांसा होगी कि इसको जो हुआ अनुभव वो क्यों हुआ. उस सूर्योदय के कारण हुआ, उस स्थान विशेष के कारण हुआ, या फिर रात में ऐसा इसने कुछ खाया था या पिया था जिसके कारण हुआ, या आहार विशेषता है, या स्थान विशेषता है, या समय विशेषता है, क्या है, किस वजह से हुआ. इस पर चर्चा होनी चाहिए, प्रमाण प्रस्तुत होने चाहिए. ऐसे पूर्व में किसी को अनुभव हुआ था क्या, इस पर विचार होना चाहिए. ये सब होने के बाद ये क्या है, ये सिद्धांत है. अंतिम में ये निर्णय होता है कि उस व्यक्ति वहाँ पर किस लिए ऐसा अनुभव कर पाया, ये सिद्धांत है. अब अनुष्ठान में आते हैं, तीसरा स्टेप, कि ये अनुभव सबको मिले इसलिए क्या किया जाना चाहिए. एग्जीक्यूशन प्लान, कि आपको फलाना कपड़ा पहनना चाहिए, फलाना टाइम पर निकलना चाहिए, साथ में पानी का बोतल लेना चाहिए, आप वहाँ जाना चाहिए, ऐसे समय पर खड़ा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए. ये सब अनुष्ठान है. दृष्टि, सिद्धांत, अनुष्ठान, विजन, एनालिसिस या कंसेप्ट, हाँ प्रिंसिपल, या और तीसरा जो है एग्जीक्यूशन. ये जो 3 स्तर है, इन तीनों स्तरों में हमें भारतीयता को समझना चाहिए. तब जो है भारतीय व्यू ऑफ लाइफ क्या है ये हम समझ पाएंगे. तो इसमें यदि हम देखेंगे कि दृष्टि क्या है, दृष्टि ये कि ऋषियों को जो दर्शन हुआ वो हम सबको सामान्यों को नहीं हो रहा है, यानी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ. यानी आजकल जो वेस्ट कहता है सुपर ह्यूमन या इनह्यूमन, इनह्यूमन को नेगेटिव में कहते हैं, सुपर ह्यूमन को पॉजिटिव में कहते हैं. जो भी हो, हमको जो अनुभव में आ रहा है उससे अलग कुछ हुआ तो वो सुपर ह्यूमन है या इनह्यूमन है. तो उस स्तर में वो लोग सोचते हैं. मगर हमारे यहाँ आप शिक्षा को देखिए, जीवन का उद्देश्य और शिक्षा का उद्देश्य दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है. अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आता है तभी प्रॉब्लम होता है, तभी आंसर्स नहीं मिल रहे हैं. तो जीवन का उद्देश्य क्या है कि मनुष्य जो जन्म प्राप्त हुआ है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इसका जो पोटेंशियल है उसको कंप्लीटली उपयोग करना, ये जीवन का उद्देश्य है. तो उसका पोटेंशियल क्या है उसको एक्सप्लोर करते करते ही पता चलता है. तो एक्सप्लोर करने के लिए पहले सामर्थ्य वृद्धि और संस्कार आदान 2 होने चाहिए. एनहांसमेंट ऑफ एबिलिटीज़, इंस्टॉलेशन ऑफ संस्कार, ये 2 बातें एजुकेशन में होनी चाहिए. वो कब होने चाहिए? शास्त्र कहता है लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत. 5 वर्ष के आयु तक उनको कुछ मत सिखाओ, फोर्सफुली कुछ भी मत सिखाओ, वो जो सीखते हैं वो सीखने दो. लालन करना चाहिए 5 वर्षों तक. 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 सालों तक ताड़न यानी बीटिंग नहीं है, ये जो कुमार जो इस पर पैटिंग करता है उसको ताड़न कहते हैं. तो शेप देने के लिए मोल्डिंग होना चाहिए. तो 5 से 16 के बीच में मोल्डिंग होना चाहिए. 16 के बाद में आप उनको कुछ नया सिखा नहीं सकते, जो भी है वो वैसा ही है. इसलिए पुत्रम मित्रवद आचरे, 16 के बाद मित्र की तरह व्यवहार करो. यानी यहाँ पर बात ये हो रही है कि
5 से 16 के समय में क्या होना चाहिए, मेनली एनहांसमेंट ऑफ एबिलिटी, यानी हम अपने आँखों से जो देख पा रहे हैं, आप अपने ये नारियल को देख रहे हैं, तो ये जो विजुअल ऑपरेटर्स का जो लिमिटेशन है इसको एक्सपैंड किया जा सकता है मगर उस एज में सोचने का सामर्थ्य को बढ़ाया जा सकता है, आँखों का, कानों का, सभी प्रकार के सामर्थ्य को बढ़ाया जा सकता है। मगर करंट सिस्टम वो नहीं कर रहा, करंट सिस्टम एग्जिस्टिंग एबिलिटीज़ को टेस्ट कर रहा है, टेस्ट के रूप में, एग्जाम्स के रूप में, बट एनहांसमेंट एबिलिटी का कोई मेथडोलॉजी अभी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। तो 5 से 16 के बीच में एनहांसमेंट ऑफ एबिलिटी होगा, तो उस एनहांस्ड एबिलिटी के माध्यम से हायर डायमेंशन ऑफ एक्सपीरियंस पॉसिबल है और प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस पॉसिबल है। एक बार प्रोफाउंड एक्सपीरियंस होने के बाद एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स जो है बहुत वीक हो जाते हैं। शिशु जब जन्म लेता है वो पशु जैसा होता है, पशुवत जो शिशु है उसको दैवत्व तक ले जाने के लिए जो एनहांसमेंट या संस्कार चाहिए, जो मूल्य चाहिए, अभी केवल सामर्थ्य बढ़ाने से नहीं चलेगा। सामर्थ्य तो रावण के पास भी था, उसको हम आदर्श नहीं मानते। रावण का भी सामर्थ्य बढ़ा हुआ था, मगर सामर्थ्य के साथ में संस्कार नहीं थे। इसलिए सामर्थ्य वृद्धि, संस्कार आधान, इन दोनों के कारण मनुष्य जो है मनुष्यता से या सामान्य जीवन से ऊपर उठकर जो है दूसरों के लिए जब जीवन जीना प्रारंभ करता है तो उसके अंदर के एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है। जब अंदर का एक्सपीरियंस अगाध हो जाता है तो बाहरी अरेंजमेंट्स उसके लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो ऋषियों ने अनुभव किया उस अनुभव को सभी लोग प्राप्त कर सके, ऐसा एक एग्जीक्यूशन प्लान उन्होंने बनाया। उस एग्जीक्यूशन प्लान को ही हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, उस सिद्धांत को ही हम अपने भारतीय दर्शन कहते हैं। वो जो दृष्टि है वो हमारे ऋषियों की दृष्टि है। इस प्रकार दृष्टि, सिद्धांत, अनुष्ठान, इन तीनों स्तरों में हम अपने भारतीय दर्शनों को समझेंगे। उस एग्जीक्यूशन प्लान को समझना सरल होगा। उस एग्जीक्यूशन प्लान के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं आजकल है, क्योंकि हम एग्जीक्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो गाड़ी खरीदते समय जो मैनुअल दिया जाता है उसको ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। अभी हम आते समय हमारे जो चालक थे वो पहली बार उस गाड़ी में बैठे थे, तो वो बहुत मुश्किल हो रहा था उनको चलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने यूज़र मैनुअल नहीं देखा है, यूज़र मैनुअल के अनुसार नहीं चला। इसलिए हमारे ऋषियों ने भारतीय यूज़र मैनुअल जो बनाया उसको हम त्याग कर अपने पॉलिसीज़ के कारण, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के कारण, अलग अलग कारणों से हम अपने यूज़र मैनुअल को छोड़ चुके हैं। इसलिए इतना सारे डिफ़िकल्टीज़ हो रहे हैं। हम अपने यूज़र मैनुअल को रीप्रिंट करके फिर से फॉलो करेंगे तो संभवतः ये सारी समस्याएं नहीं होगी। आई थिंक मेरी प्रिपरेशन का कुछ ज़्यादा वैल्यू रहा नहीं है उत्तर के उपरांत। लेकिन तो आपने एक बात कही कि हमारे ऋषियों को जो अनुभूति हुई थी वो सबको करवाने के लिए अनुष्ठान है, जो जीवन पद्धति है, अपने संस्कृति शब्द कहा, और उस एक बाहर से ऐसी भावना आती है कि उसमें एक समग्रता है, उसमें भेद नहीं है। आजकल जो ये सब डाइकोटोमीज़ है ना, द्वंद्व हैं, वर्क वर्सेस लाइफ की हमने पहले एक बार बात की थी, वर्क वर्सेस लाइफ है, इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी है, साइंस वर्सेस आर्ट है। ये भेद हमारे पारंपरिक दर्शन या शिक्षा पद्धति में प्रतीत होते हैं कि नहीं है, ऐसा है। पर हम जो ताड़ित नहीं हुए हैं 16 साल की उम्र तक ये जो ऑडियंस है, हम अब क्या कर सकते हैं ये प्रश्न है। एक बार आता हूँ उन पे, लेकिन मैं हाँ जी, थोड़ा रिफ्रेश कीजिए प्रश्न को और एक बार। जो हम 16 साल की उम्र तक जिनका इनके साथ ताड़ित नहीं हुआ वो है, गॉन केसेस हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए, केवल शिक्षा पर या मॉडर्निटी पर हम दोष नहीं दे सकते हैं। महाभारत में युद्ध के बाद जब भीष्म जी शरशैया पर पड़े हुए थे तो पांडव जी अपने अपने शिविर में थे, तो कृष्ण जी ने कहा कि बुद्धू लोगों, वहाँ इतने बड़े विद्वान पड़े हुए हैं, उनसे जाके कुछ सीखो। तो वो सीखने के लिए आए, तो भीष्म जी से बात शुरू हुई। उन्होंने कहा कि आगे जाके हम ही इस पर राज करने वाले हैं, कैसे चलाना है, क्या करना है, बताइए। तो भीष्म जी ने बोलना शुरू किया। तो 57 डेज़ तक उन्होंने बोला। ये लोग अपने घर जाके अन्य का घर करके खाना खा के वापस आते थे, फिर से सुनते थे। ऐसा 57 डेज़ का कन्वर्सेशन है, उसको अनुशासनीय पर्व कहते हैं।
उस अनुशासनीय पर्व में ह्यूमन साइकोलॉजी, पॉलिटी, फैमिली, होम साइंस जिसको कहते हैं वो, इकोनॉमिक्स है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैं। धर्म के विषय भी है, उपासना के विषय भी है। अंत में युधिष्ठिर एक प्रश्न पूछते हैं कि कालो वा कारणम राजा, राजा वा काल कारणम, यानी बुरे राजा के कारण या बुरा काल आता है या बुरे काल के कारण बुरा राजा आता है। तब भीष्म जी कहते हैं इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम, ऐसा संशय ही मत करो, राजा ही काल का कारण है। तो आज की जो समस्याएं, हम बर्निंग इश्यूज जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसकी गंगोत्री कहाँ है, वो देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये राजा कालस्य कारणम कहा। अभी एक पॉलिसी का उदाहरण लेते हैं हम लोग। अंग्रेज़ों को लगा कि भारतीय लोग जो है, बहुत सारे लोग अपने हाथों में बहुत सारे हथियार इस्तेमाल करते हैं, वेपन्स है इनके हाथ में। किसी के हाथ में छुरी है, किसी के हाथ में भर्ची है, किसी के हाथ में अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे शिरस्त्राण, सर पर कुछ पहनना नॉर्मल था, वैसे हथियार रखना भी नॉर्मल था। आज दोनों नहीं रहे, एक ही व्यक्ति शिरस्त्राण पहने हुए हैं। आप ही, हाँ, पुणे में तो वो बहुत नॉर्मल था, जैसे शिरस्त्राण पहनते वैसे हथियार भी नॉर्मल था। तो इतने सारे अपने हथियारों का प्रयोग करके हम पर हमला कर दिए तो हमारे हालत क्या होगा। इसलिए अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया कि हथियार रखना कानूनन जुर्म है, अपराध है। आपको विशेष प्रसंग में आपको रखना ही है तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करो। ऐसी सिचुएशन लेके आए। तो अब इसका आउटकम ये हुआ कि धीरे धीरे हथियार बनाने वाले बनाना बंद कर दिए और पहनने वाला पहनना बंद कर दिए। आज उस हथियारों को बनाने की कला नष्ट हो चुकी है और आज हमारे हाथ में कोई हथियार दिया तो हम डर जाते हैं कि इसका क्या करना है। कुछ जनरेशन्स में ये हालत में हम पहुंच गए। ये राजा कालस्य कारणम, काल का कारण राजा कैसा होता है, ये उसका उदाहरण है। इस प्रकार आज की जो समस्याएं हैं उनकी भी एक गंगोत्री है। यानी आज अर्बन लिविंग में हम जैसे सेटअप में रहते हैं, जहाँ पर ठीक से टहलने के लिए भी जगह नहीं है, जहाँ परिवार के 2-4 लोगों को रखने के लिए भी जगह, ऐसा परिवार का मतलब क्या है, कितने भी लोग आ जाए तो उनको आश्रय देना, चलो आ जाओ अंदर चलो। मगर ऐसा संभव है क्या? अभी नहीं है। यानी परिवार नहीं रहा। इसका कारण क्या है कि सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ कि कुछ जगहों पर ही हम इंडस्ट्री शुरू करेंगे, सारे लोग काम करने के लिए वहीं पर माइग्रेट करेंगे। उस माइग्रेशन के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, फोर्स्ड माइग्रेशन। यहाँ पर पीछे कुछ छूटता है, वहाँ पर आगे कुछ छूटता है। इसको महायंत्र प्रवर्तनम और महानगर निर्माण कहते हैं। यानी एक महायंत्र यानी मास प्रोडक्शन यूनिट्स आप बनाना शुरू करेंगे अनसाइंटिफिक मेथड से, तब महानगर वहाँ निर्माण हो जाता है। उस महानगर की अपनी समस्याएं होती है। उन समस्याओं के कारण माता पिता अपने बच्चों के साथ समय भी नहीं बिता पाते। ये समस्या है क्योंकि वो ट्रेन में, लोकल में या फिर मेट्रो में कहीं पर फंसे हुए होते हैं। हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर उनके वर्क कंडीशंस को दोष नहीं देते हैं, उनको ही दोष देते हैं। तो लिविंग कंडीशंस को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उस लिविंग कंडीशन को जिसने बनाया, उस पॉलिसीज़ को भी हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा भविष्य में न हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। केवल नंबर्स, चार्ट पर नंबर्स ही इम्पोर्टेंट नहीं है, वे ऑफ लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो इन पर भी सोचना चाहिए। तब जो है आप जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं, उदाहरण के लिए माता पिता अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हैं या घर में दादा दादी नहीं रहते हैं, बच्चे जो है बाहर ही ज़्यादा रहते हैं, अलग अलग दोस्तों के या अलग अलग सोर्सेस में इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। बच्चे ऐसे हो जाते हैं जैसे कि इनके बच्चे है ही नहीं। उसके बाद में उन इन्फ्लुएंस के कारण वो कुछ करते हैं जिसके कारण बाद में समस्याओं को फेस करते हैं। उस समस्या के समय में साथ देने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स तो दूर हो चुके हैं। तब जो है थेरेपिस्ट के पास, कंसल्टेंट्स के पास जाना पड़ता है। तो इसका सबका गंगोत्री कहाँ है ये देखना पड़ेगा हमें। तो भारतीय, अभी कुटुंब पर बाद में बात करेंगे, भारतीय कुटुंब और पंचमहायज्ञ, इन सभी समस्याओं का समाधान है, वो कैसे समाधान है वो बाद में हम देखेंगे जी। I think we got a view of Bharatiya view of life. I think for Madam, I'm going to come to today's aspirations. She had a stellar academic career in like international relations, social psychology,
And I think during your, and it has been in the time when we have seen tremendous change, 30 years, 40 years, which has technology and free market and all of that. So how has that changed aspirations? And what do you think is good and bad in it? And how has the education system reacted to those changing aspirations in general? I'm not putting a specific question, a comment on that from your. Thank you. While paying my respects to His Holiness Sri Sri Abhinav Bharati, Mahaswami of the Kundali Mutt, and ladies and gentlemen, I thank the Pune Samvad and Arka for giving me this opportunity. I'm so happy to be at the Gokhale Institute of Politics and Economics because it is an institute that's been started by servants of India Society and Gopal Krishna Gokhale. Today, nobody remembers him, a very great constitutionalist and a great thinker. How many of the youth know him? So I think the education system that we have adopted is the Macaulayan education system. And that is a system that made us hate our own traditions. Because unless you say that you are not as good as I am, like Rudyard Kipling said, the white man's burden. Meaning he said we are uncivilized. If you read all the documents of the British, see the earlier Islamic invasions came and physically destroyed our temples and architecture. That was bad enough, but the British colonial experiment was an intellectual onslaught. And hence, first thing I will say, decolonize the Indian mind. We are a dharmic Hindu civilization. Whatever may be your faith, you are all culturally Hindu. See, Hinduism is not like the Abrahamic religion. Dharma is not religion. Dharma is a non-translatable. So I think it is very necessary that you have to, like the leftists did. JNU is famous for it. We wrote all the textbooks. For us, history was not, facts are sacred and interpretations can vary. We said interpretations are sacred, facts can vary. So whomever we want, we said was good. And one thing that the left did, which we have to do, is make you forget your roots. That is why we need a root and branch reform, like Swamiji said. And for this, I think it is very important. Aspirations of all young people, we are rootless today. Till the Westerners are telling you that they are saying today what Upanishads and Bhagavad Gita said. That is, the development of the inner self has to go with earning money, materialism, because it gives you a balance, a harmony. So I think basically young people today have to first realize that what they have learnt is not the right thing or not the only thing. It is just said, so first you have to understand, Tattvam Asi. You understand what you are. Who am I? Why am I here? What is my roots? And second is reschool. De-school and reschool. Otherwise, let me tell you, we'll be rootless human beings. And only when I go to US or somewhere, I realize how great the Indian civilization or the Bharatiya civilization and Dharma is a dharmic civilization, cannot be compared to one God, one book, and one sword. We are the most democratic, pluralistic, and a feminist civilization. Swamiji, I always say that the woman is the most respected in the dharmic civilization. And why? Because the most important portfolios in Indira's cabinet was given to women. Wealth. Every man wants wealth, every woman. Mahalakshmi is the goddess of wealth. Knowledge, Saraswati. And power, Durga. See, we celebrate Dashera, which is the victory of feminine power. Tell me which religion or way of life in the world does this. And all our gods are named after their wives. Umapati, Sitapati, Lakshmipati. There is no Patini.
So I say we are the greatest feminist civilization. These things are not taught in schools and colleges. So I think I would request people like Swamiji and Pune Samvad and young people here, please do read and write in the simplest way, because we need a book. When you teach moral science in schools, nothing on the Indian system or Indian way of life is taught. So unless I take what to say, and please remember, that is why they said Sanskrit is bad, and then demonized those who read that language. This is a way of running down a civilization, a culture. So I think young people today, with all technology, artificial intelligence, please improve your own intelligence. Machines are learning, humans are surfing. Humans must learn and machines can surf. Thank you. I'm so as she puts it about how aspirations get affected by what we have been told, and our sort of who we are, and what tradition, what knowledge we already had, and how it was great is something that we don't get from our standard growing up, the contemporary normal growing up which is there. But I think the talk of aspiration is more universal also. Our ideas of what is the uddeshya, life ka uddeshya kya hai, purushartha, etc. is, though it is rooted in our civilization, it is universal. It is because we did not draw the lines like the Abrahamics did. We thought for everyone, for an individual being there. So I would probably like Swamiji to talk more about aspirations of life and purusharthas, etc., and explain to us what was our view of what to expect from life. The word Purushartha has been differently translated in Hindi. Purushartha means efforts in Hindi, I guess, yes. But in the original meaning, it is not so. Purushartha means Purushasya Artha, यानी पुरुष का जो अर्थ है, पुरुष जिसके लिए काम करता है, पुरुष यानी वो स्त्री पुरुष दोनों आते हैं उसमें, जो परिपूर्ण है वह पुरुष है इस अर्थ में. अभी एक विद्यार्थी है, उसका अर्थ क्या है? विद्या है, इसलिए उसका नाम विद्यार्थी है. लाभार्थी क्या है? लाभ उसका उद्देश्य है, इसलिए उसका नाम लाभार्थी है. उसी प्रकार पुरुषार्थ 4 है, यानी इतना, जैसे हमने कहा कि एनालिसिस हुआ, सिद्धांत निर्णय हुआ कि इंसान को क्या चाहिए. एक मीम आता है ना, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी या किसी का मीम आता है कि क्या चाहिए औरत को, ऐसा कुछ मीम आता है ना. तो ऐसा क्या चाहिए इंसान को, ऐसा हम लोगों ने सोचा, भारतीय लोगों ने, तो उसको 4 डिवीज़न में बांटा कि ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चाहिए. 4 के अलावा कुछ नहीं चाहिए. यानी 4 के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं. तो उसमें अर्थ और काम, अर्थ यानी हमको देखते ही अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा सोफ़ा सेट देखते ही अच्छा सोफ़ा सेट चाहिए, अच्छा फ्लैट चाहिए, अच्छे लोकेशन में चाहिए, अच्छे कॉलेज में सीट चाहिए, ये सारे हमारे अर्थ है. अच्छे जीवन साथी चाहिए, ऐसे बहुत सारे अर्थ है. और कामनाएं हैं, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, भावनात्मक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, कामनाएं हैं. तो अर्थ और काम, अर्थ एसेंशियल्स है, कामना एडिशनल भी है कभी कभी. तो इन दोनों के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है, प्राणियों में भी और मनुष्यों में भी. आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सामान्य है. तो ये विदेशी लोगों को भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी को भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सहज है. इसलिए उन लोगों का आप देखिए, उनका सिद्धांत में, वेस्ट के सिद्धांत में, कि सबसे पहले किसी ने कहा कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ग्रीक फिलोसोफर ने कहा. बाद में कुछ एवोल्यूशन आया उस विचार में, बाद में कि मैन इज़ अ सोशियो पॉलिटिकल एनिमल ऐसा कहा गया. बाद में मैन इज़ अ सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस एनिमल कहा गया, उसको रिलीजन भी चाहिए.
मैन जैसे सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस इकोनॉमिक स्पिरिचुअल ऐसे बहुत सारे जोड़ते गए, कितना भी उसमें जुड़ते गए मगर उसका जो पीछे एनिमल है वो कांस्टेंट है। यानी विचार में कितना भी एवोल्यूशन आ जाए फिर भी जो है वो इंसान को प्राणी ही मानते हैं। डार्विन तो यहाँ तक कहता है कि कॉम्प्लेक्स एनिमल, कॉम्प्लेक्सिटी के अतिरिक्त मनुष्य में और प्राणियों में अंतर ही नहीं है। ये साइंटिफिक थॉट है इनकी। रिलीजियस थॉट को तो छोड़ दीजिए, उस पर तो हंसी आएगी। सिर्फ साइंटिफिक थॉट में ही ये एनिमल वाला विषय है। एनिमल को क्या चाहिए? अर्थ और काम चाहिए, ये दो ही है उसके। तो इंसान को भी इतना ही चाहिए, ऐसा उनका मानना है। इसलिए कम्युनिस्ट विचार हो, आपने कम्युनिस्टों की बात की, कम्युनिस्ट विचार हो, सोशलिस्ट विचार हो, या नास्तिकों का विचार हो, या फिर कैपिटलिज्म के विचार हो, जो भी अवैदिक दर्शन है उन सब का विचार में अर्थ कामों की पूर्ति होनी चाहिए। हम जो चाहे वैसे हमें करने की स्वतंत्रता चाहिए, जब जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त होना चाहिए। प्राप्त नहीं हो रहा है तो कुछ समस्या है। क्या समस्या है? स्टेट में समस्या। स्टेट को तोड़ो फिर से बनाओ, सर्वनाश करो फिर से क्रांति बनाओ, फिर से शुरू करो, यही सारी बातें हैं उनकी। तो उनकी दृष्टि में अर्थ काम इतना ही है। मगर भारतीय जीवन दृष्टि या वैदिक जीवन दृष्टि स्पष्ट कहे तो वैदिक, भारतीय को वैदिक कहने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। वैदिक जीवन दृष्टि में ये 4 विषय हैं, 4 पुरुषार्थ है। वो मोक्ष जो है वो सापेक्ष पुरुषार्थ है, उसको छोड़ देते हैं, पहले तीसरा वाला ही लेते हैं। धर्म जो है क्या करता है? ये रेगुलेटरी फैक्टर के रूप में काम करता है। हाउ टू अर्न, हाउ नॉट टू अर्न, हाउ टू इंडल्ज, हाउ नॉट टू इंडल्ज, कितने हद तक आप जा सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ये जो है धर्म जो है रेगुलेटरी फैक्टर के रूप में अर्थ और काम के ऊपर लगाम लगाता है। लगाम क्यों लगना चाहिए? इंसान को फ्रीडम होना चाहिए। ये कुछ विचार है, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म इत्यादि लोगों के विचार है। वोकिज्म का तो उतना वही विचार है। मगर ये करते जाने से वो अपने भी नाश करते हैं और दुनिया का भी नाश करते हैं, परिवार का नाश करते हैं, समाज का नाश करते हैं, एनवायरनमेंट का नाश करते हैं, सबका नाश होता है। तो ये सभी का नाश न हो, ये संतुलित कॉम्प्रहेंसिव होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट यदि होना है, हेल्थी सोसाइटी को हमें बिल्ड करना है, तो इन सेल्फ रेगुलेशन आवश्यक है। ये एनफोर्समेंट के द्वारा हो ही नहीं सकता। इसलिए धर्म पुरुषार्थ जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। इसके द्वारा ही, उदाहरण के लिए माता, कोई महिला जो है, महिला की तरफ पुरुष का देखने की एक दृष्टि होती है, मगर घर में माता होती है, माता की तरफ उस प्रकार से वो देखता है क्या? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं देख सकता? देख सकता है ना, मगर उसको धर्म उसको रोकता है, उसका भाव उसको रोकता है। ऐसा रुकावट अगर नहीं है तो इंसान क्या करेगा? वही एनिमल वाला ही विषय आएगा। इसलिए धर्म पुरुषार्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है। धर्म यानी रिलीजन नहीं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं, ऑर्थोडॉक्सी नहीं। धर्म का बहुत सारे अर्थ है, एक सिंपल सा अर्थ बताता हूँ। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हमारे लिए प्रतिकूल है वो दूसरों के लिए भी हमें आचरण नहीं करना चाहिए। अभी आपको कोई डांटे तो आपको अच्छा नहीं लगता, ये आपके लिए प्रतिकूल विषय है, आप दूसरों को भी नहीं डांटना। यही धर्म है। हमें जो अच्छा नहीं लगता हमें दूसरों को भी आचरण नहीं, ये अर्थ, ये धर्म का अत्यंत सरल अर्थ है। वो व्यापक रूप में हमें समझना है तो थोड़ा बहुत धर्मशास्त्र को पढ़ना चाहिए। इसलिए अर्थ काम के विषय में धर्म से नियंत्रित रूप से उनका उपभोग करने से ही सभी का, हमारा भी कल्याण होगा, विश्व का भी कल्याण होगा। तो इस धर्म को अलग अलग एग्जीक्यूशन प्लान पे फिर से आते हैं। दृष्टि क्या है कि जीवने यावदा दानम, जीवन में हम जितना प्राप्त करते हैं उससे हमें ज़्यादा देना चाहिए। अभी यहाँ फल रखे हुए हैं, 10-12 फल होंगे, 10-12 फल आपने हमें दिया, ये हमारा आदान हुआ। इसका प्रदान ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा फल हमको देना चाहिए। कैसे संभव है? मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। मगर मनुष्य के पास इतना सामर्थ्य है कि उसके अंदर वो वैल्यू एडिशन कर सकता है। फिजिकली फलों में नहीं कर पा सकते हैं, मगर आपने कुछ गणित सीखा, संगीत सीखा या गिटार सीखा, कुछ सीखा आपने उस पर साधना किया, उसको बेटर बनाया और अच्छे से आनंद लिया, और आपने उसको और अच्छे तरह से किसी को सिखाया। वैल्यू एडिशन हुआ कि नहीं हुआ?
उसी प्रकार आपको ज़मीन मिला, अन्न मिला, गाय मिले, उस ज़मीन का उन गायों का आप अपने सामर्थ्य का, अपने शरीर का प्रयोग करके आप जो है खेत बोकर जो है वहाँ से फसल उगाकर और ज़्यादा लोगों को खिला सकते हैं। जितना मिलता है उससे अधिक देना ये मनुष्य के लिए संभव है, भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से, भौतिक रूप से, सभी प्रकार से संभव है। ये एग्जीक्यूशन प्लान है, धर्म का एग्जीक्यूशन है ये। तो इस एग्जीक्यूशन में और सिस्टमैटिकली इसको किया गया है। उदाहरण के लिए पंचमहायज्ञ है, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, इस प्रकार 5 महायज्ञ बताए जाते हैं। देवयज्ञ में क्या होता है कि कोई ब्राह्मण जो है अपने घर में बैठ के स्वाहा स्वाहा ऐसा देवताओं को आहुति देगा, यानी विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम में कुछ देवताओं के लिए आहुति देना उसके लिए अनिवार्य होता है, वो देवयज्ञ है। उस देवयज्ञ को करने के लिए उसको अलग अलग प्रकार के संविधाओं को लाना पड़ता है, गाय का घी चाहिए, अलग अलग विषय है। ये क्यों किया जाता है? देवताओं से हमें जो प्राप्त है, आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से हम आए हैं। ये उपनिषदों का मंत्र है। आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः, अद्य पृथ्वी, पृथिव्या औषधयः, औषधिभ्योन्नम, अन्नात् पुरुषः। हमारे माता पिताओं ने जो अन्न खाया उस अन्न ही परिवर्तित होकर हमारा जन्म हुआ है। और जन्म के बाद भी हमें निरंतर अन्न चाहिए। अद्यते च भूतानि, उसी से हमारा नाश भी होता है, अन्न के कारण ही हमारा नाश भी होता है। तो इस अन्न का और पंच महाभूतों का जो हमने ग्रहण करके इस जीवन को पाया है, उसे हम वापस क्या दे रहे हैं? तो देने का मार्ग है देवयज्ञ। तो वो क्या अपने घर में बैठ के 2-4 स्वाहा स्वाहा करने से वो कैसे वापस दे पाएगा? आप सोचिए, एक ब्राह्मण अपने घर में देसी घी चाहता है तो उसके पीछे क्या क्या वेब ऑफ सिस्टम चाहिए। गाय चाहिए, गाय के साथ गौशाला चाहिए, गौशाला के लिए क्या क्या चाहिए, वो संविधा, वो उसकी पलाश की संविधा चाहिए। पलाश की संविधा कहाँ मिलती है? जंगल में मिलती है। पलाश का पेड़ अगर है तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी क्या होगी उसकी, इसका एक्रोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी का ये क्या होगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो पृथ्वी को या पंचमहाभूतों को वापस देने की जो प्रक्रिया है वो देवयज्ञ है। ये देवयज्ञ ब्राह्मण अपने घर में मंत्रों के साथ कर सकता है या अन्य लोग अन्य प्रकार से कर सकते हैं। तो देवयज्ञ तो सभी करते हैं, उसके सोफिस्टिकेशन, डिटेलिंग में अंतर हो सकता है। उसी प्रकार पितृयज्ञ, पितृयज्ञ आप देखेंगे तो देव अपने पितरों को तर्पण देना, श्राद्ध में पिंड प्रदान करना इत्यादि जो है ये पितृयज्ञ है। इससे करने से क्या होता है? पितरों को देवता के रूप में देखो, इससे जो है परिवार सुरक्षित होता है। दूसरी बात यह कि बहुत सारे देशों में आइडेंटिटी ही बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम कहाँ से आए। ये आइडेंटिटी को बना के रखने के लिए कुछ ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, कुछ फेस्टिवल्स करते हैं, वी बिलोंग टू दिस, ऐसा वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सेंस ऑफ आइडेंटिटी के आधार पर ही बहुत बड़ा जियो पॉलिटिक्स चलता है। मगर हमारे भारत में ये सेंस ऑफ आइडेंटिटी की कोई समस्या नहीं है। आप अमेरिका में ही देखोगे तो फादरलेस अमेरिका नामक पुस्तक है, उसका रिसेंटली एक अपडेटेड वर्जन डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी आया है कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके फादर कौन है। तो ऐसे होने से क्या होता है कि बूढ़े माँ बाप को बाहर फेंकना या बच्चों को जवान होते ही बाहर फेंकना, मैं ठीक, आई एम ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, ये वाला विषय है। तो वहाँ सरकार को फूड टिकट देना पड़ता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाना पड़ता है, उनके बजट के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आता है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ क्या होता था कि परिवार में 4 लड़के हैं तो एक लड़का नहीं पढ़ा तो भी जो है उसको बुरा नहीं कहते थे, एडजस्ट कर लेते थे। किसी ने नौकरी नहीं किया तो भी एडजस्ट कर लेते थे। माता पिता को बाहर भेजना तो ये तो कल्पना की बात नहीं है। तो ऐसी बहुत सारे विषय है। कुटुंब का जो, कुटुंब पे हम फिर से कभी बात करेंगे। कुटुंब जो है वो किस आधार पर, किस फाउंडेशन पर खड़ा होता है? आइडेंटिटी के। हम फलाने के पोते हैं, परपोते हैं। कुटुंब का जो आइडेंटिटी है वो कब अच्छा सॉलिड होता है? जब आप पितृयज्ञ कर रहे हो। इसलिए इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए ऐसा लोग कहते हैं। हम ज़्यादा जो अच्छे तरह से भारतीय संस्कृति को समझते हैं वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। इसका यही कारण है कि आइडेंटिटी ठीक से बनी रहनी चाहिए, मगर आइडेंटिटी के कारण विद्वेष नहीं होना चाहिए, परस्पर विद्वेष नहीं होना चाहिए। इस बात को सभी मानते हैं। विद्वेष को हटाने के लिए जातियों को ही हटाओ, कुटुंब को ही हटाओ, ये संभव नहीं है, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो केवल हमें विद्वेष पे काम करना चाहिए। रही बात पितृयज्ञ की। और तीसरा है मनुष्य यज्ञ। दूसरों को कुछ दो और बाद में तुम खाओ, ये मनुष्य यज्ञ है। इसके कारण जो है सरकार को वेलफेयर स्कीम्स भी नहीं लाने पड़ते हैं।
सोशलिज्म वाला विषय है। यदि भारतीय पंच महायज्ञों को सही सही आप सबको सिखाओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, या पहले जैसा समाज होगा, तो ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे सेठ दास ऐसे थे जो ये काम कर लेते थे, सरकार को नहीं करना पड़ता था, समाज कर लेता है। आज भी किसी गांव में जाके आप बोलिए कि कुछ अन्नदान करना है तो आज भी मिल जाता। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से अभी मिटा नहीं पाए हैं। चौथा है भूत यज्ञ, कुत्ता, बिल्ली, गाय इत्यादि, उनमें पाल्य वर्ग, पोष्य वर्ग, 2 प्रकार के जीव होते हैं। उनमें किसका पालन करना है, किसका पोषण करना है, वो होने चाहिए समाज में, पृथ्वी पर होना चाहिए। 5वां जो है ब्रह्म यज्ञ, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, मनुस्मृति में कहते हैं। कंट्रोवर्सी की बात हम कर रहे हैं मनुस्मृति में मनु कहते हैं अध्यापन ही ब्रह्म यज्ञ है। यानी यज्ञ समझकर, सैलरी के लिए काम नहीं करना, उसे यज्ञ समझकर पढ़ाना, ये अध्यापक का धर्म है। ये धर्म किसके लिए बताया गया? ब्राह्मण के लिए बताया गया। इसलिए ब्राह्मण का कोई पेशा ही नहीं है। ये लोग कहते हैं मनुस्मृति का डोमिनेशन होता है। मनु महाराज वास्तव में ब्राह्मण को भिक्षुक बनाने की बात कर रहे हैं। उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा, उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, वो बिना फीस लिए उसको पढ़ाना पड़ेगा। तो आज की क्रूड भाषा में कहे तो ब्राह्मण को भिखारी बनाने वाला ग्रंथ मनुस्मृति है। फिर भी जो है उसके ऊपर इतने बड़े आरोप लगते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मयज्ञ, ये सारी बातें आप समाज में वापस लाओगे तो कितनी सारे ग्लोबल इश्यूज़ का ये सोल्यूशन है। आप देखिए, हमें आज भी आप स्वयंसेवक लोग तो आपदा आती है तो दौड़ जाते हैं सेवा के लिए। क्यों? डॉक्टर जन संघ का शुरुआत क्यों किया? क्योंकि कुटुंब में जो मूल्य मिलते हैं बच्चों को, जो शिक्षा मिलती है, जो भाव मिलते हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। इसलिए उसके पर्याय के रूप में, सब्स्टिट्यूट के रूप में शाखा चलाना शुरू किया। वास्तव में डॉक्टर जी ने कुटुंब में जो मिलता है उसी को देना शुरू किया। यानी हमारे कुटुंब फिर से आ गए तो शाखा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बाकी सारी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। ऐसे ये जो थेरेपी इत्यादि जो आ रहे हैं, आप जो अभी कह रहे हैं, यूथ के अंदर जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का कारण भी जो है कुटुंब का बिखर जाना बहुत है। और उन कुटुंबों के बिखरने के पीछे बहुत सारे पॉलिसी के कारण भी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ अन्य कई सारे पॉलिसीज़ है, मैरिज एक्ट इत्यादि भी बहुत सारे विषय है, जिसके कारण कुटुंब बिखर जाते हैं। कुटुंब के बिखरने के बाद उसमें पंच महायज्ञ नहीं होता है। पंच महायज्ञ के न होने से जो है वो जो दायित्व भाव होता है। कुटुंब क्या है कि आत्मीयता। अभी आप है, आपके पिताजी है, आपके पिताजी को मैं कुछ कहूँ तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा, अरे मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत कहिए आप। क्यों? क्या समस्या है? आपके पिताजी अलग हैं, आप अलग हैं। अलग होते हुए भी हाँ, आपका जो मैं है, मैं नामक जो आपका ये जो सर्कल है, उस सर्कल के अंदर आपके पिताजी आते हैं। इसलिए उस सर्कल को छूते ही आपको करंट लगता है। तो वो जो मैं है आपके पिताजी तक सीमित नहीं, उसको और एक्सपैंड किया जा सकता है। जो एक्सपैंड हुआ तो वो आत्मीय लोग हैं, ये हमारे अत्यंत आत्मीय है, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब वो अलग नहीं है, हम अलग नहीं है, ऐसा। तो कुटुंब का आधार जो है आत्मीयता है, पहला वाला। दूसरा वाला यह कि त्याग। कोई बड़ा भाई जो है पढ़ाई अपने छोड़ के छोटे भैया का या बहन का पढ़ाई के लिए नौकरी करना शुरू कर देता है। ये त्याग क्यों हुआ? उसका पढ़ना, मेरा पढ़ना एक ही है। तो अपना करियर त्याग करके वो, उसके त्याग अत्यंत सहज है कुटुंब में, क्योंकि उसका आत्मीयता है। तीसरा यह कि सहयोग, कोऑपरेशन। कोई भी विषय में सहयोग करते हैं। कुछ लोग अपने ऑफिस को ड्रॉप करते हैं या अपने पत्नी को सब्जी लाने के लिए, सब्जी काटने के लिए मदद करते हैं। अलग अलग प्रकार के सहयोग। चौथा जो है कर्तव्य प्रज्ञा। किसका काम क्या है? पिताजी, आप पिताजी हो तो पिताजी का काम आप करो, माताजी है माताजी का काम आप करो, या आप बच्चे हैं तुम अपने लिमिट्स में रहो, तुम ये करो। जिसका जो काम है उसको वो करना है। ये 4 विषय होने के कारण कुटुंब जो है सुदृढ़ होता है। मगर आज क्या ये पूरी तरह से रह पाए हैं? इसका स्वरूप उसी प्रकार से रह पाया है अलग अलग सिचुएशंस के कारण? ये अगर होता तो इसके अंदर ही जो शिक्षा आवश्यक है वो शिक्षा मिल जाती। उस शिक्षा के न मिलने के कारण उसको बाहर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से या अन्य अन्य वर्कशॉप्स के माध्यम से, थेरेपीज के माध्यम से। तो कुटुंब का रिवाइवल ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। और उस कुटुंब में पंच महायज्ञ भी एक प्रमुख मुद्दा होता है, क्योंकि वो धर्म है।
धर्म के अतिरिक्त तो कुटुंब निर्वहन भी नहीं हो सकता। तो कुटुंब और पंचमहायज्ञ ये बहुत सारे समस्याओं का समाधान है। इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए। तो मैं शायद यही प्रश्न मैडम को पूछना चाहूँगा कि स्वामी जी ने बहुत सारी बातें की। कुटुंब एक बात की, पुरुषार्थ की बात की, पंचरण और पंचयज्ञ की बात की। आज हम जिस तरह से कॉलेजेस में जो भी पढ़ाते हैं उसमें सब्जेक्ट्स पे काफ़ी ज़ोर है और इंडिविजुअल को ट्रांसफॉर्म करने पे कि वो ये जो बाउंड्री है उसमें औरों को इंक्लूड करे, ऐसी बातों को का महत्व कम है मेथोडोलॉजी में। और अगर हम ये परिवर्तन करना चाहें अपने शिक्षा पद्धति में, तो गिवन आज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसको नेविगेट करके हम क्या कर सकते हैं? ये one important thing is if you have to bring in, I would say the Indian knowledge systems have to come in. We don't have मराठी मध्ये बोलले चालेल का? माझी हिंदी चांगलं नाहीये म्हणून इंग्लिश और मराठी. Everybody knows Marathi. Anybody who doesn't know Marathi, there are a Okay, few. English. Then see, if you Indian present education system is alienating. I told you we have just taken the colonial system. We have not changed. You can call it post-colonial. So India is a post-colonial state, and it is important that now we have to bring in what we call Bharatiya Jnana Parampara, or the Indian knowledge systems. And that means what? Adhyatma Vidya. Adhyatma Vidya has to be combined with your science, technology, all those things. Because see, please remember, the West sees in binaries. It is either or. It is science or religion. Whereas the dharmic civilization of India or Bharat is never either or. Our knowledge system is holistic. We were never anti-science or anti-technology. We never said the world is flat or any of those things. So you have to understand that our way of life for yoga or the way we eat, food systems, as Swamiji said, is based on certain scientific practices. Can we bring out the sciences in it? See, all our Nobel Prizes went only to people who were rooted in Vedic mathematics or our Indian knowledge system. Take C.V. Raman, Subramaniam Chandrasekhar, or Srinivasa Ramanujam. Do all of you know Srinivasa Ramanujam failed the 12th standard? But he has written algorithms and equations on infinity which you and I, even the greatest of mathematicians, cannot solve. So when he was asked, how do you do it? Professor Hardy asked him in Cambridge. He said, Goddess Bhagavati comes and writes it on my tongue. That means science and spirituality go hand in hand. Another is reason and intellect come together for us. And that is what we call as buddhi in the Upanishads. So our knowledge system is not separated. If you see, even now take gender. In the West, when we study gender, patriarchy is the main enemy. Whereas for India, it is Ardhanarishwar. That is balance, harmony. So you have to understand that basic principles of knowledge are very different. And I would say that we have to totally overhaul. Otherwise, we will have to have something outside the system, or the system you have to start from school. And we have to make these books very simple, understanding at different levels. Otherwise, it will be very, very difficult if we do not do this, and we can do it. We have the reason, we have the intellect, we have everything. So I think unless we make this paradigm shift, present day education system will make us rootless. And it is, unless the teacher makes a conscious effort to try to bring in
these values. That's why I said decolonize the Indian mind. First, remove all the rubbish which is in the mental garbage and try to take in new ideas. I'm not saying hate the West. We are a universal civilization. We believe in Vasudhaiva Kutumbakam. But with universalism, we are unique as well. Unique meaning we are a way of life. And that uniqueness has to come in our universalism. So I think this is extraordinarily important for us because our religion, our way of life, I wouldn't say religion, our dharmic system is not a revelation. It is not a point. It is experience, as Swamiji said, of different saints. It's also your own personal experience, how to improve yourself spiritually and understand this. I don't know whether most of you have read Fritzo Capra. He said that nuclear physics and this is closer to Hindu and Buddhist thought. Why? Because dharmic civilization, we are very much comfortable with what? Chaos. Chaos leads to creativity. Whereas with the Abrahamic religions, they want to control. Everything has to be in order. We don't believe in control. We are very comfortable with chaos. And that leads to our creativity. So that is why post-independent India, no Nobel Prizes in science. Because most of them were schooled in these traditional systems. That is very, very important. So it is important for us not to hate our own values, our own culture. So I would tell every individual here, please study the documents. You may not like the Ramayana, but study it and condemn it. Don't condemn it without studying it. Ignorance with arrogance is a very dangerous combination. Yeah, one thing reminded me that C.V. Raman and Mokshagundam Vishveshwaraya both used to do Trikal Sandhyas, and they got Nobel Prize in Physics, and nowadays people just... So I think I'm going to ask last question, and then I'm going to ask audiences. Last question to Guruji is, Swamiji, is about, you have worked with, I think, thousands of Gurukulas across India over a long time. So what can the modern education system learn from the Gurukulas in terms of methodology? Content, Madam talked a lot about, but in terms of methodology, how to do sanskar on the individual, what can the modern system learn from Gurukulas? Okay. Apart from the methodology, I'll come to the methodology as well. But the purpose of education is most important than the content. What Madam spoke is very important, and the government also has come up with a new division called IKS division and spending thousands of crores of rupees. And many centers are getting established across the country in premier institutions to research on the IKS. Many individuals also doing, and many private organizations are also involved in the IKS related research. First of all, we would like to correct the name. It is not IKS, it is BKS, Bharatiya Knowledge Tradition. We should do away with the name that has been given by the foreigners. Therefore, we call our country Bharat, therefore it is BKS for us. When government is going to change it to BKS, we don't know, but we will call it BKS. The purpose of education, as I told you earlier, the West thinks man is nothing but complex animal who has some additional requirements. Therefore, their entire view of life is limited to that. And as I said earlier, enhancement of ability and installation of samskara is possible to human beings only. That happens from the age of 5 to 16. When we do that, at that time we don't have to give them so much information in terms of learning. We just have to enhance their abilities and give some samskaras. How to, as I said, how to see somebody, how to respect somebody, how to obey somebody. All these things will come in life. That builds their life. Let me give an example. In the Upanayana Samskara, Yajñopit Samskara, in North it is called Yajñopit Samskara.
the father tells the son that idanim brahmacharyasi, now you are brahmachari, sayam pratar bhikshasva, go to the bhiksha for evening and morning, both times. Divama swapsi, don't sleep at the daytime. Na vivasana snayat, don't be completely naked while taking bath. These all kinds of things, do's and don'ts, that is required in the Gurukul education. And finally he says, द्वादश वर्षाणि वेदग्रहणान्तं वा ब्रह्मचर्यं कुरु आचार्याधीनो भूत्वा ब्रह्मचर्यं कुरु. द्वादश वर्षाणि, 12 years आचार्याधीनो भूत्वा, we have to understand that. Staying under the control of acharya, adhina shabda has been used here. Not be like friend with your teacher. His father is not saying that. In marriage they are saying it, but in Upanayanam it is not so. Why that adhina is needed? आचार्य के अधीन में छात्र को क्यों रहना है? स्टूडेंट की तरह आज क्या हो गया है एजुकेशन में, क्लासरूम यहाँ है, टीचर का हाउस यहाँ है, स्टूडेंट का हाउस यहाँ है, ये ट्रायंगल बन गया है. उस ट्रायंगल में किसी का ऊपर किसी का अधीनता नहीं है. उस टाइम पे आओ, वहाँ सिखाओ, चले जाओ, और उसको जो सीखना है वो सीख लेगा. ये ट्रायंगल क्रिएट हो गया है. मगर यहाँ पर आचार्य के अधीन में रहकर कहा जा रहा है. जो प्राण विद्या का उपासना करते हैं और प्राण को अच्छी तरह से समझते हैं, और आजकल जो रिसर्च करते हैं वो भी कहते हैं कि जिस समय आप किसी को अपने से सुपीरियर समझते हैं और ओबे करते हैं, उस वक्त आपका लर्निंग एबिलिटीज एनहांस होता है. ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है. और एक एग्जांपल देता हूँ आपको. अमेरिका में बहुत सारे जो अल्कोहल पीते हैं वो अल्कोहल से बाहर आने के लिए चाहते हैं, मगर बाहर आ नहीं पाते और बाहर बता भी नहीं सकते कि मैं एडिक्ट हूँ. इसलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, अल्कोहलिक्स अनोनिमस. हाँ, उसी स्तर पर एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन बना है, उसका नाम है ओवर ईटर्स अनोनिमस. उनके 11 प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस ऑफ ओवर ईटर्स अनोनिमस ऐसा एक पुस्तक है. उसको मैं पढ़ रहा था कि क्या लिखा है इन्होंने. तो उसमें शुरू में ही आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू हैव अ प्रॉब्लम. दूसरा ये है कि यू हैव टू एक्सेप्ट समबडीज अथॉरिटी ओवर यू टू ब्रिंग सैनिटी. You have to accept some, and you cannot come and say, oh, I just have some eating disorder, just fix that, you don't interfere into my life. ऐसा नहीं चलेगा. You have to accept somebody's authority over you to bring sanity. We will fix everything. You have to give every control into our hands. ये वाली बात है शिक्षा में. तब जो है उनके लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है. गुरु भक्ति. अभी हम संन्यास ले चुके हैं, अभी नहीं है, मगर अभी पिछले साल तक जिन्होंने हमको बचपन में पढ़ाया, उनका फ़ोन भी आ जाता था. फ़ोन स्क्रीन पे उनका नाम देखते ही हम खड़े हो जाते थे. ये वाला जो भाव जो है वो बचपन में आना चाहिए. तो उस वजह से जो है उनका लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाता है. आपका सवाल आप रिपीट कर पाएंगे फिर से? मैंने कहा था कि क्या है जो मॉडर्न सिस्टम्स मेथोडोलॉजी टर्म्स में मेथोडोलॉजी में ये आता है कि गुरु वाला जो विषय है, इसी पे हम गुरुकुल पे आए थे. ये जो ट्रायंगल वाला विषय है ये भी गुरुकुल का है. वहाँ पर ट्रायंगल नहीं है. हम आपको 5 सूत्र बताते हैं. इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है कि पुस्तक निरपेक्षता, कक्षा निरपेक्षता, काल निरपेक्षता, परीक्षा निरपेक्षता, सर्वकार दया निरपेक्षता, ऐसे 5 सूत्र हैं. इन सूत्रों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं फिनलैंड के एजुकेशन के बारे में बताता हूँ. फिनलैंड में काउंसिल फॉर क्रिएटिव एजुकेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना. उस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च किया और गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि आप अमुक चेंजेस लेके आइए. तो गवर्नमेंट ने चेंजेस ले आया और आज जो है वर्ल्ड में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड मानी जाती है. आप गूगल करो, वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड. उसमें क्या ऐसा स्पेशलिटी है? तो उनका फर्स्ट रिकमेंडेशन है कि डेमोलिश द वॉल्स. आप 4 दीवार के बीच में उनको बिठा के पढ़ाओगे तो वो सीखेंगे नहीं, इसलिए दीवार हटाओ, ओपन इसमें सिखाओ. दूसरी बात यह है कि 7 साल की उम्र तक, अप टू द एज ऑफ 7, देयर इज़ नो नीड टू सेंड देम टू द स्कूल. फोर्सफुली कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है. तीसरी बात यह कि उनको सब्जेक्ट मत सिखाओ, उनको टॉपिक सिखाओ, प्रोजेक्ट दो, उसको काम करते करते वो सीखेंगे. जैसे कि अभी हम गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में बच्चों को बिठा लिए, हम कहाँ जा रहे हैं? खेत को जा रहे हैं. खेत कहाँ पर है? ईस्ट में है. ईस्ट क्या है? हमें सिखाना पड़ेगा. ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, सब सिखाना पड़ेगा.
हाँ, गाड़ी जो है 40 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है, 40 किलोमीटर की स्पीड मतलब क्या, स्पीड वेलोसिटी इत्यादि सिखाना पड़ेगा। वो इंजन कैसा फ्यूल हुआ है वो सिखाना पड़ेगा। जब हम उतरेंगे तो वहाँ काली मिट्टी है या लाल मिट्टी है देखना पड़ेगा। काली मिट्टी है तो कहेंगे कि ये विदर्भ में है, उत्तर कर्नाटक में काली मिट्टी मिलती है। ये उत्तर कर्नाटक क्या है, विदर्भ क्या है, आपको जियोग्राफी समझाना पड़ेगा। हम जो है बीज बोने के लिए स्वाति नक्षत्र की बारिश आनी चाहिए। स्वाति नक्षत्र क्या होता है समझाने के लिए आपको 27 नक्षत्र सिखाना पड़ेगा। हम वर्षा ऋतु में बारिश आएगी, वर्षा ऋतु क्या है आपको 6 ऋतुओं को सिखाना पड़ेगा। ऐसे काम करते करते, खेती करते करते 6 महीने के अंदर 12 फंडामेंटल साइंस वो सीख लेंगे। ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, क्लासरूम लर्निंग नहीं। ये लेके आओ, ये फिनलैंड का रिकमेंडेशन है। तो ऐसे कई सारे रिकमेंडेशन की वजह से, कई सारे प्रैक्टिसेस की वजह से फिनलैंड आज नंबर 1 है। आज आप बताओ ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ इंडिजिनस एजुकेशन में थी या नहीं। गुरुकुल शब्द को हम छोड़ देंगे, इंडिजिनस शब्द सेक्युलर है उसको यूज़ करेंगे। इंडिजिनस शब्द में एजुकेशन में ये सारी चीज़ें थी या नहीं? थी। हाँ, मुझे रविंद्र शर्मा जी याद आ गए, आदिलाबाद वाले। हाँ, तो हमारे एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स को सबसे पहले ये करना है कि एजुकेशन देना हमारा काम नहीं है। ये पहले गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा। एजुकेशन देना गवर्नमेंट का काम नहीं है। एजुकेशन को कंट्रोल करना बाबुओं का काम नहीं है। एजुकेशन जो है ये आचार्यों का काम है। तो क्या कहते हैं, अभी सूत्रों पे आते हैं कि पहला सूत्र जो है कक्षा निरपेक्ष, यानी कक्षा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। गुरुजी देखेंगे हम जब पढ़ाई करते थे तो 9 छात्र थे हम, उन 9 छात्रों में से 4 बैच थे। तो इसको क्या पढ़ाना है, इसको क्या पढ़ाना है, इसको कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, वो सारे डिसीजन वो इंस्टेंटली वो लेते थे। उनके ऊपर कोई करिकुलम प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं था उनके ऊपर। तो कोई ये फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड ऐसा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। ये कक्षा निरपेक्षता है। और कहाँ पढ़ाना है, कभी कभी वो अपने बाग में काम करते थे, गार्डन में काम करते रहते थे, हम जाके बगल में खड़े रहते थे, वो पढ़ाते थे। हम अपने हाथ में पुस्तक लेके पढ़ते थे, वो अपने गार्डन में काम करते थे। पढ़ाने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। आज भी जो है आंध्रा में आप जाओ, बस में जाते, आरटीसी बस में जाते हुए लोग जो है वैदिक विद्वान अपने बच्चों को पढ़ाते हैं बस में बिठाकर। तो कक्षा निरपेक्षता ये पहला सूत्र है। कोई डिफाइंड क्लासरूम नहीं होता है और उसका कोई ग्रेड नहीं होता कि इस एज में इसको यही पढ़ना है। आज 16 साल वाला एलिमेंट्री लेवल पढ़ सकता है, 8 साल वाला एडवांस्ड भी पढ़ सकता है। ये वाला फ्रीडम होना चाहिए और जगह की फ्रीडम होना चाहिए। कक्षा निरपेक्षता, काल निरपेक्षता, कब पढ़ना चाहिए, कैसे ये काल हटा देना चाहिए। और पुस्तक निरपेक्षता, पुस्तक में जितना है उतना ही पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने मिलकर कहीं पर दफ्तर में बैठ के तय कर लिया कि ये पढ़ना चाहिए, उसी को क्यों पढ़ाए। गुरुजी को लगता है कि कुछ और पढ़ना चाहिए, गुरुजी के मन में जैसे जो पढ़ाना वो पढ़ा सकते हैं। इसलिए पुस्तक निरपेक्ष होना चाहिए। पुस्तक होना ही नहीं चाहिए ऐसा नहीं, वो पुस्तक पे सीमित नहीं होना चाहिए। चौथा है परीक्षा निरपेक्षता, एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एग्जामिनेशन होना चाहिए मगर एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन नहीं होना चाहिए। एग्जाम के लिए ही पढ़ाई ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, परीक्षा करने के तरीका है, अलग अलग तरीके हैं। वो मास लेवल पे करने जाएंगे तो वो मैकेनिकल हो जाता है। परीक्षा निरपेक्ष। और अंतिम जो है सर्वकार दया निरपेक्ष, सरकारी दया पर नहीं चलना चाहिए। ये 5 सूत्र जो है ये गुरुकुल के सूत्र है। इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो गुरुकुल वापस आएंगे। जी जी। I think, how much time do we have for questions? 10, 15 minutes? 15 minutes, I think 3-4 questions. गुरुवर्य आपके चरणों में प्रणाम। मैं ध्रुव त्रिवेदी हूँ और मैं अभी MD आयुर्वेद में मेरा अभ्यास चालू है। मैं आयुर्वेद संबंधी एक गंभीर विषय से आपको अवगत भी करवाना चाहता हूँ और उसी संबंध में आपका मार्गदर्शन भी हमको चाहिए। हम आरोग्य क्षेत्र में जब भारतीयता की बात करते हैं तो वो आयुर्वेद है, उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु ये पोस्ट कॉलोनियल टाइम में जब आयुर्वेद शिक्षा की बात होती है तो उसका स्वरूप बहुत चिंतित करने वाला है, आउटकम बेस्ड नहीं है। हम लोग ये रिसर्च उनकी एक रॉन्ग अपूर्ति परिभाषा को लेकर साथ में चल रहे हैं। तो आयुर्वेद का वेस्टर्नाइजेशन, ये पॉलिसी अभी आई है जिसमें आयुर्वेद के एजुकेशन का कुछ भारतीय आधार नहीं है। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम लोग हर चीज़ उनके पैरामीटर में सेट करें तभी विश्व एक्सेप्ट करेगा और तभी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो हेल्थ पॉलिसी रिलेवेंट आपका मार्गदर्शन चाहिए। जी,
आपको ये समझना चाहिए कि जो बात आज हम लोग यहाँ पर इतना खुल के कर रहे हैं, ऐसे बातें करना 20-25 साल पहले संभव नहीं था, है कि नहीं? हम गवर्नमेंट को ही एजुकेशन से हटाने की बात जो है एक कुलपति के सामने कर रहे हैं। देश की छोड़ दीजिए, 5 साल पहले हमें इतना हिम्मत नहीं होता था कि कुलपति जी आ गए तो वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, विश्वविद्यालय चलाते हैं, उनके सामने हमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, ऐसा हमको लगता था। तो समय के साथ जो है आत्मविश्वास देश का भी बढ़ेगा। पहला, हार्ड पावर जब ज़्यादा होता है तब सॉफ्ट पावर भी बढ़ता है। तो हमारा हार्ड पावर बढ़ रहा है क्या, ये आप देख लीजिए। तो हार्ड पावर हम बढ़ाने की दिशा में यदि प्रगतिशील है तो सॉफ्ट पावर को बचा के रखना चाहिए। जिस वक्त हार्ड पावर में हम हावी हो जाएंगे उस वक्त सॉफ्ट पावर को भी हम सामने ला सकते हैं। आप इसको थोड़ा हिंट समझकर इसको आगे का समझ लीजिए आप जी। गुरुचरणों में मेरा नमन। श्री गुरुभ्यो नमः। मेरा नाम चिंतन कुंभारीकर है और मैं विधि का विद्यार्थी हूँ। और मैं आपको विधि संबंधित ही एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नामक एक विधि सीखनी पड़ती है, जिसके अंदर जब मैं कुछ दिन पहले मेरे परीक्षा के लिए, जैसे आपने कहा, पासिंग के लिए पढ़ रहा था, तो उस समय मुझे ऐसा समझ में आया कि हमें सच में आहार निद्रा जो आपने कहा कि धर्मेण हीना पशु भी समाना, वो हमें हो ही गया है। मतलब यह कि हमने धर्म और प्रकृति को अलग कर दिया है। ये कहा गया है कि मनुष्य सर्वोपरि है और प्रकृति हमारे कंजम्पशन के लिए है। ये मेरा पहला प्रश्न है कि हम कैसे धर्म और प्रकृति को एक रूप कर सके विधि के माध्यम से। दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे आपने मनुस्मृति की बात कही, तो जो जातियों का इवोल्यूशन है वो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार भी होता आया है, जिससे कुछ रेशियल प्योरिटी के नोशंस जातियों में घुस गए हैं। और जैसे मैम ने कहा कि इससे अब्राहमाइजेशन और अनवारंटेड क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म ये हो रहा है, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं जो हमें एक्नॉलेज करने चाहिए। तो इसका समाधान आपके विचार में क्या होना चाहिए? धन्यवाद गुरु जी। आप विधि का मतलब लॉ ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा मान के उत्तर दे रहे हैं। हाँ 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 जी, बैठ जाइए। हिंदी में विधि का मतलब लॉ है, अन्य भाषाओं में, संस्कृत में विधि का मतलब प्रोसीजर है। हाँ, भारतीय जो जुडिशरी आज जो है ये कॉलोनियल जुडिशरी है, उनके कपड़े का पहनावा भी जो कॉलोनियल है, ये आप सब जानते हैं। उसको ठीक से करने के लिए हमें पॉलिसी रिफॉर्मेशन करने पड़ेंगे, और उस पॉलिसीज़ के रिफॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस है, लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि, वो प्रोसेस भी कितना पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, आप जानते हैं। इसलिए छोटी मोटी पॉलिसीज़ भी चेंज करना बहुत कठिन इस देश में है। इस पर हमें विचार करना चाहिए कि हमने जो अडॉप्ट किया है सिस्टम, उसमें एज इट इज़ हमने वेस्टर्न डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया है। उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अननेसेसरी है। तो वो वाला पहला विषय है कि हमें पॉलिसी चेंजेस करने की प्रक्रिया को पहले ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय दृष्टि है, जीवन दृष्टि है, उसको लेकर लिखे हुए जो अर्थशास्त्र इत्यादि जो ग्रंथ है, उनको लेके उनमें जो दंड विधान इत्यादि है, हाँ, वो सिविल हो सकते हैं या क्रिमिनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनके आधार पर, यानी केवल अपने संस्कृत ग्रंथों के आधार पर ही करना चाहिए ऐसा नहीं। भारतीय समाज में जैसा होता था पहले, वो साइंटिफिक है कि नहीं देखकर उनमें क्या हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको अडॉप्ट किया जा सकता है। एज इट इज़ पुराने ग्रंथों को लेके आके हम जुडिशरी में नहीं ला सकते। तो ये वाला ही विषय है भारतीयकरण, जो जुडिशरी का भारतीयकरण के विषय में आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले भारतीयता क्या है ये समझने वाले लॉयर्स चाहिए, पॉलिसी मेकर्स चाहिए, जजेस चाहिए ना। पहले गुरुकुल चलाइए, गुरुकुल में पढ़कर जब वो जज बनेंगे तब वो उसको पॉलिसी रिफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए गुरुकुल करना इन सब का सोल्यूशन है। तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये लॉ और मेडिसिन, ये जो दोनों सवाल थे और ऐसे शायद और भी होंगे लोगों के। ये जो आपने कहा कि IKS में हो रहा है, पर गुरुकुलों में पढ़े हुए लोग क्या लॉ के जो मॉडर्न लॉ के फंडामेंटल्स हैं, मेंस रिया और ऐसे
इनके जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं इस पे रिसर्च की पॉसिबिलिटी IKS एक साइलो बन गया है, एक और नया कोर्स बन गया है। वो सारे विषयों के मूल आधार क्वेश्चन करने वाला वो नहीं अभी तक नहीं बना है। मैं बीच में सवाल ऐड कर रहा हूँ, सॉरी, अगर कुछ हो सकता है इसमें तो। I would basically say that at least in JNU, we have made IKS compulsory to all schools. So each school will introduce it as part of their syllabus. Alag ek department, at least in JNU, I have not done. And number two, law mein, I would say basically, as Swamiji said, caste was earlier flexible. Today it's not flexible. The person who does Brahma Vidya, meaning who studies, is the greatest Brahmin. So you see, Valmiki wrote the Ramayana. He was not a Brahmin. So was Vyasa and Baba Sahib Bhimrao Ambedkar, who was the chairman of the drafting committee. So if we have to go as per karma, Baba Sahib Bhimrao Ambedkar should have been the greatest Brahmin of modern India. Why are we not doing it? So let us remember that means does a Brahmin working in a shoe shop, does he become a chamar? Last two questions will be taking. जी स्वामी जी प्रणाम। मेरा एक ऐसा सवाल था कि पाथ टू पर्पस में एक रास्ता राष्ट्र के पीछे जाता है, तो राष्ट्र धर्म की जागृति कैसे करें इस कंडीशन में? ये जाति धर्म, तो पहला पर्पस राष्ट्र होना चाहिए या स्वयं होना चाहिए? राष्ट्र भाव कैसे इनकलकेट किया जाए इस पर हम देखेंगे। जैसे हमने कहा कि फैमिलीज़ में जो पहले मिलता था, शिक्षा मिलती थी कि माता बैठ के बच्चों को पहले ये कुछ गीत सिखाते थे, कोई प्रवचनकार आता था, वो प्रवचनकार कुछ बोलता था, सब लोग इंस्पायर हो जाते थे। हमें पता है, स्मरण है कि 8 साल के आयु में हमारे गांव में एक कोई देवी महात्म्य ऐसा कुछ प्रवचन हुआ था, उसको देख के इतना इंस्पायर हो गए थे। वो इम्प्रेशनेबल एज होता है, उस समय में हमको क्या मिलता है उसके आधार पर हमारा भाव बनता है। तो वेष्टि से समष्टि तक हमें जाना चाहिए, वो एजुकेशन का प्रॉब्लम है। वेष्टि से समष्टि यानी क्या? जैसे शुरू में हमने कहा कि मैं यानी आत्मीयता मेरे ऊपर ही सीमित न होकर मेरा परिवार, ये इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ। उसका एक्सपेंशन जो है मेरा कॉलोनी, मेरा सिटी। आप कौन है? मैं मराठी हूँ, मैं पुणेकर हूँ। ये आइडेंटिटी कहाँ से आया? आपका आइडेंटिटी जो है, आपकी आत्मीयता परिवार से एक्सपेंड होकर पुणे तक आया, इसलिए आप अपने आप को प्राउड पुणेकर कहते हो। तो वो जो आइडेंटिटी है, वो आत्मीयता जो है, वो और एक्सपैंड हो सकता है, और एक्सपैंड हो सकता है। जो एक्सपैंड होकर कहाँ तक एक्सपैंड हो सकता है? परमेष्टि तक हो सकता है, मगर हम उसको राष्ट्र तक ही रखते हैं। राष्ट्र सुरक्षित होगा तो समाज सुरक्षित होगा, समाज सुरक्षित होगा तो परिवार सुरक्षित होगा, परिवार सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे। यानी उसमें स्वार्थ है, राष्ट्रीयता ये स्वार्थ है, कोई बड़ा वैराग्य वाला विषय नहीं है जैसा पोर्ट्रे किया जाता है। तो ये स्वार्थ सबके अंदर लाना चाहिए। इसके लिए एजुकेशन में जो कमी है उस कमी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। भारतीय समाज जो है, कुछ नहीं मिला, अरे नहीं मिला हमको, ऐसा रोते हुए नहीं बैठता, कुछ अलग करके उसको पाने का प्रयास करता है कि नहीं करता? आप देखिए पिछले 100 सालों में कितने अल्टरनेट सिस्टम्स हमने डेवलप किया, कितना किया, जिसके कारण आज इतना परिवर्तन देश में आया है। वैश्विक स्तर पर जो है परिवर्तन, भारत जो है अच्छे स्थिति में है ऐसा कह रहे हैं। बहुत सारे देश जो है नीचे जाने की स्थिति में है। भारत जो अच्छे की स्थिति में, इतने कॉलोनाइजेशन इत्यादि होने के बावजूद अच्छे स्थिति में क्यों है? क्योंकि वो रेसिलियंस जो है, फिर से खड़े होने का जो स्वभाव भारतीयों में है, वो हो रहा है। हमें हमारा एक्सपोजर बहुत छोटा होता है, इसलिए हमको लगता है कि कुछ नहीं काम हो रहा है, ऐसा हमको फ्रस्ट्रेट लगता है। मगर बड़े स्तर पर जो काम हो रहे हैं उन सबको जानेंगे तो लगता है कि अरे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो काम तो हो ही रहा है। I hope I answered your question. I'm going to ask the lady there. No, last question. Last one question. और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी विवाह संस्था है, वहाँ पे ऐसा एक श्लोक रहता है, धर्मे च अर्थे च कामे च नाती चरामी। तो स्त्रियों ने तो आज तक ये निभाया है, काफ़ी हद तक निभाया है। अभी थोड़ा थोड़ा वो बोल्ड हो रही है, लेकिन पुरुषों के विषय में हमारा समाज
क्यों इतना लिबरल रहा है, पुरुषों ने क्यों नहीं आज तक ये महसूस किया कि नहीं, मैंने भी ये शपथ ली है मेरी वाइफ के साथ कि इसका ये मतलब है कि तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। तो पुरुष क्यों नहीं ये पाल सकते हैं अपनी जो ओथ लेते हैं वो क्यों नहीं मीन्स जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में भी अच्छा इससे औलाद नहीं हो रही है तो फिर मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, ये क्यों है? मीन्स कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि लेडीज़ लोगों ने किए हैं किसी और से संतान उत्पन्न, लेकिन पुरुषों ने हमेशा ही दूसरे विवाह करने के लिए उनको समाज ने क्यों, उन्होंने अपना हाँ मेरा भी जैसे मेरी वाइफ का नसीब है मेरा भी वैसा ही नसीब है ये करके, हाँ उसके नसीब में नहीं है औलाद, ठीक है मेरे नसीब में भी औलाद नहीं है, तो ये कह के दूसरी शादी करना क्यों मीन्स वहीं पे खुद को क्यों नहीं रोका, वो अपनी वाइफ के साथ लॉयल क्यों नहीं रह सके? जी आप बैठ जाइए। आप जो है बहुत जनरलाइज क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पुरुषों में आत्मसंयम या सेल्फ रिफ्रेन क्यों नहीं है। यही तो हम बात कर रहे थे, 4 पुरुषार्थों की जब बात कर रहे थे कि अर्थ और काम जो है ये धर्म से नियंत्रित होना चाहिए। धर्म से नियंत्रित यानी धर्म ग्रंथ से नियंत्रित नहीं होता है। आप धर्म ग्रंथ में है इसलिए नियंत्रित होना ही चाहिए ऐसा आप कह रहे हैं। विवाह में प्रॉमिस करते हैं इसलिए फॉलो करना ही चाहिए ऐसा आप कह रहे हैं। कुछ रिलीजन्स में वो विवाह में ओथ लेने के बाद उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हेल में जाएंगे, वो वहाँ उनको जलाया जाएगा, ऐसे चीज़ें हैं। इसलिए उसके हेल के डर से कुछ लोग फॉलो कर सकते हैं, आजकल वो भी नहीं कर रहे हैं। यानी मनुष्य का स्वभाव ये है कि अपने ही किए हुए प्रॉमिस से मुकर जाना, ये स्वभाव है। ये किस रिलीजन में कौन से देश में ये बात छोड़ देते हैं। तो इस स्वभाव को समझते ही भारतीय समाज का जो व्यवस्था थी कि गांव में ऐसा होता था, कोई कुछ कर रहा है तो कोई देख लेते थे, ये तो उनका बेटा है ना, उनका पोता है ना, ऐसा पहचान लेते थे। पहचान लेने के बाद उनको पंचायत में ले आके उनको जो है वहाँ पर ट्रायल चलता था, उनको दंडित किया जाता था, पेनल्टी दिया जाता था। ये क्या है? डिसेंट्रलाइज जुडिशरी सिस्टम था। उसका मिसयूज़ भी हुआ है मगर ये डिसेंट्रलाइज था। इस वजह से क्या होता था, गांव में हर कोई एक दूसरे से परिचित होने के कारण कुछ करने से पहले डरते थे कि हमारा अपमान हो जाएगा, हमको बॉयकॉट किया जाएगा, हमको हमारे साथ कोई लेन देन नहीं करेगा, रोटी बेटी का संबंध नहीं रखेगा। ऐसा जो है इस डर के कारण जो है उस काम करने से पीछे हट जाना ये स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है, यही इंसान को गलत करने से बचाता है। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा प्राइवेसी मिलती है तो ज़्यादा व्यक्ति भ्रष्ट होता है। हमें ज़्यादा पतन हमारा नहीं होना चाहिए तो कम से कम प्राइवेसी रखना चाहिए। हाँ, तो प्राइवेसी जो है बढ़ती जा रही है। प्राइवेसी बढ़ती जाने के कारण इंडिविजुअल कैरेक्टर भी गिरते जा रहा है। फैमिली इंस्टीट्यूशन भी आज जो है ज़मीन के विषय में गांव में झगड़े होते हैं तो लोग डरते थे कि गांव के जो कोई मुखिया या कोई बता देता तो लोग डरते थे कि अरे उन्होंने कहा तो हमें मानना पड़ेगा। आज ऐसी स्थिति नहीं है। अपने भाइयों से कहते कोर्ट में देख लेंगे, बोलते कि नहीं बोलते, क्योंकि सब कुछ वहाँ से सेंट्रलाइज कंट्रोल जब होता है, लॉ जो उसको अलाउ करती है, तो ये प्रोविज़न जब होता है तो ये बात होती है। डिसेंट्रलाइज जुडिशरी होना इसके लिए अच्छी बात है। दूसरी बात यह कि आप यक्ष प्रश्न नामक विषय को जानते होंगे। युधिष्ठिर यक्ष से प्रश्न पूछे तो उस यक्ष प्रश्न में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन, ऐसा प्रश्न पूछता है यक्ष। उसका उत्तर क्या देता है पता है युधिष्ठिर? जो एकांत में भी अपना धर्म का पालन करता है वो महान धर्मात्मा है। इसका मतलब क्या हुआ? एकांत में हर कोई अपना धर्म का पालन नहीं करता है, तो हर कोई अपने विवाह में अपने वचन के अनुसार ही जिएगा ऐसा नहीं है। उसको उस रूट में रखना पड़ता है। रेलवे को जैसे ट्रैक में रखना पड़ता है, जीवन को भी ट्रैक में रखना पड़ता है। उसी लिए समाज है। उस समाज को बिगाड़ने का काम कॉलोनाइजेशन इत्यादियों ने किया है। उसको ठीक करेंगे तो ये सारी चीज़ें ठीक होगी। जी जी, धन्यवाद। Thank you so much. I think we all will be going home with some answers and some questions, and may the divine guide us all in our pursuit towards the purpose. There is a small announcement.
we request the audience not to meet Swamiji after the program. Those who seek his darshan may meet him tomorrow at Veda Shastra Vidyalay, Shukravar Pet at 1:30 p.m. Kindly do not meet him after the program. Those who are interested, those who seek his darshan, can do so tomorrow at 1:30 p.m. Veda Shastra Vidyalay, Shukravar Pet. एकदा मराठीत पण सांगते, ज्यांना स्वामीजींचं दर्शन घ्यायचं आहे कृपया त्यांनी प्रोग्राम नंतर ते घेऊ नये. उद्या 1:30 वाजता वेदशास्त्र विद्यालय शुक्रवार पेठ येथे स्वामीजी आपल्याला दर्शन देतील. Now I invite Vansh Tewatia to deliver the vote of thanks. Distinguished speakers, esteemed guests, and our very patient audience. It is with deep appreciation and immense gratitude that I stand here on behalf of Pune Samvad and ARC to thank the revered Srimad Jagadguru Shankaracharya Shri Shri Abhinav Shankar Bharati Mahaswamiji. Your discourse beautifully connected the timeless wisdom of Bharatiya philosophy with the contemporary challenges of finding purpose in today's fast-paced world. You have not only inspired us to introspect deeply, but also provided a guiding light for aligning our aspirations with values that resonate with our inner selves and the greater good of society. I would like to thank Honorable Professor Santeshri Pandit. Ma'am, we are deeply grateful for your presence and the insights you have shared, which will surely stay with us as we navigate our academic and personal journeys. I would also like to thank Adarniya Nikhilesh ji for moderating today's session. May we all strive to imbibe and live by the principles you all have illuminated for us today. Lastly, I would like to thank all the participants and the Gokhale Institute of Politics and Economics. I would urge all of you to kindly follow the social media handles of Pune Samvad and ARC